Hello guys, welcome back to my channel, my dear friends. Today we're watching a video of Jay Shankar visited Russia. So it is called Jay Shankar targets USA from Russia. I don't know what they are doing. Actually, I didn't check any information about it beforehand, but I know that he met Mr. Putin and probably Lavrov, foreign minister of Russia. And guys, I'm really curious. I think they talked about USA tariffs, all these things, India-Russian ties. So guys, give me a thumbs up and let's watch. कुछ ही मिनट्स पहले रशियन गवर्नमेंट ने ये विजुअल्स अपनी सरकारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। I see for व्लादिमीर the पुतिन first एक time, बहुत by the ज्यादा way. अच्छे मूड में मिल रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर से, भारत के विदेश मंत्री से। पीछे आप देखोगे सरगेई लावरोव आपको दिख जाएंगे और ऑफ कोर्स भारत के बाकी जो ऑफिशियल्स हैं ये भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर की, वहां पे ऑफ कोर्स बात की गई कि किस तरीके से अभी व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आएंगे तो विजिट में क्या क्या बातें डिस्कस होंगी, किन किन चीजों को लेकर रशिया और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं। रशिया ऑब्वियसली ये चाहता है कि एक पेमेंट सिस्टम बन जाए इंडिया और रशिया के बीच में बिना payment रुके, system, we जो remember स्विफ्ट about पेमेंट it. सिस्टम से बिल्कुल अलग हो ना। ये बन Right. पाएगा या नहीं बन पाएगा देखना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे सैंक्शन का खतरा काफी हद तक बना रहता है। आप एक बात नोट करिए, रशिया में ना डॉक्टर एस जयशंकर से मीडिया ने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो ये यूएस गवर्नमेंट बार बार भारत को टारगेट कर रहे हैं, ये सैंक्शंस तक की अब बात यहाँ पर की जा रही है। Yeah, of आप course. इसके बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आप देख पाओगे Of course, this is on the agenda, and about the payment system, it will be really very beneficial as Russia can't use SWIFT right now, and we really have a lot of problems with international transactions. So I would be really happy about it if they make it ये है डॉक्टर in एस जयशंकर का future. रिप्लाई। I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. ना पहले तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अ पर्सन, On the person क्या like कह रहा है उसके बारे में मैं Trump. कुछ बोलना चाहता नहीं हूँ। ये आज के समय इमेज बन गई है डोनाल्ड Ah, ट्रम्प, yeah, क्योंकि okay. इतने ज्यादा अनस्टेबल अनप्रेडिक्टेबल हैं कि आज इन पर कोई It कमेंट is कर दी, interesting. कोई बड़ी बात नहीं है कि कल सुबह उठ के इंडिया के बारे में कोई अच्छी ट्वीट कर दी, फिर उसके बाद 10 खराब ट्वीट्स कर दी। तो ऑलमोस्ट ट्रम्प के बारे में वो कह रहे हैं कि देखिए वो एक व्यक्ति के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी जो ओवरऑल पॉलिसी है यूएस Yeah, I गवर्नमेंट agree की उसके about बारे it. में मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। We are not the biggest purchasers of Russian oil. That is China. We are not that's the China, biggest really. purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. What is We are LNG? Tell me not the please, I don't country know. which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. He's always on We are a top, right? country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Right. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. ना इन्होंने सिरा सिरा बोला मैं परप्लेक्स्ड हूँ। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिकन पॉलिसी यहाँ पर क्या है। हम वो देश है जिनको यूएसए ने खुद कहा था कि ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी के लिए आपको रशियन ऑयल परचेज करना चाहिए। Yeah, guys, remember it was also this video from Prashant Hawan, or not? No, it was a different video. It was said that in general there is a price cap, and other countries can buy oil from Russia, but with a very good discount, so Russia will not benefit from it. And this way, also these countries in general just help the whole economy of the whole world, because if nobody buys oil from Russia, there will be just inflation and other bad things, because the prices of oil will increase a lot. अमेरिकन खुद हमारे पास आए थे आज से 2-3 साल पहले कि रशियन ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दो। हम कुछ हद तक थोड़ा बहुत अमेरिकन ऑयल भी परचेज करते हैं, अब धीरे धीरे ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन मैंने आपको वैसे बताया है, इंटरनेशनल जो
प्राइसेस हैं ऑयल के ये काफी गिर रहे हैं। Yeah, maybe अमेरिकन ऑयल भी Prashant काफी Hawan सस्ता हो रहा said, है। I don't ये तब remember. तक ही है जब तक ईरान की वॉर फिर से स्टार्ट नहीं हो जाती, देन थिंग्स विल चेंज रैपिडली। बट सिंस यूएस का ऑयल भी सस्ता हो रहा है, इंटरनेशनल रेट के आसपास आ रहा है, हम यहाँ पे आज के समय यूएस से भी परचेज कर रहे हैं। बट ये लॉजिक लगा देना कि इंडिया फाइनेंस कर रहा है रशिया की वॉर, हमने ओपनली यहाँ पर बोला हमारे विदेश मंत्री ने कि इंडिया नंबर 1 बायर नहीं है रशियन ऑयल का, ना हम नंबर 1 बायर है एलएनजी के, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो Guess, यूरोपियन okay. यूनियन I खरीदता didn't know है the फ्रॉम abbreviation. रशिया, दे आर द नंबर 1 बायर स्टिल। तो क्यों भारत को टारगेट किया जा रहा है? आई एम कंफ्यूज, Crazy, आई एम right? परप्लेक्स, मुझे पता नहीं कि भारत को क्यों ये बिना बात पे Yeah, टारगेट कर रहे exactly, हैं। और जो बात जयशंकर साहब ने यहाँ पर exactly. बोली है ना, आप देखोगे By डोनाल्ड the ट्रंप way, tell me about China. Like, there are no tariffs on them or what? Because I don't understand. India is targeted, but it is not the only country who buys just oil from Russia and not the first one. So if the first one is China, they should be targeted in general. But I don't understand, is it true or रिपब्लिकन not? पार्टी Like, है, what's उसी going पार्टी के on तो with एक दिग्गज China? नेता आज के समय ट्रंप को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, इंडिया यूएस रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करके गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। ये एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। जो भी आदमी अमेरिका में जियोपॉलिटिक्स समझता है, यूएन में काम कर चुका है, ही और शी अंडरस्टैंड्स इवन द बेसिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइज्ड और डेमोक्रेटिक Yeah, पार्टनर है। right. I इंडिया agree with यूएस की it. हेल्प कर I रहा है said about चाइना many की times. सप्लाई लाइन से अलग होने में। तो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना इतना बड़ा ब्लंडर है कि यूएस इससे रिकवर नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। इधर आप देख पाओगे ट्वीट बाय निकी हेली, Yeah. ये यहाँ पर कह रही है इंडिया इज एसेंशियल इन हेल्पिंग द यूएस मूव इट्स सप्लाई चेन्स फ्रॉम इंडिया। आगे ये भी ऐड करती है Very कि true. देखो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में लाई जाए, मगर इंडिया स्टैंड्स अलोन इन इट्स पोटेंशियल टू मैन्युफैक्चर चाइना लाइट स्केल फॉर प्रोडक्ट्स दे कांट बी क्विकली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस्ड हियर। ऑब्वियसली देखो सब कुछ यूएस खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन यूएसए हैज। और नीचे आप कमेंट सेक्शन देखोगे ना, मुझे ये देख के They अच्छा लगता है spoiled कि just अमेरिकन it. ही आज के समय इंडिया के साथ खड़े हैं। कई अमेरिकन, मैं आपको अभी बहुत सारी वीडियोस और दिखाऊंगा, इधर आप देख Interesting. पाओगे। एक अमेरिकन यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया यूएसए का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर रहा है एंड हैज बीन सिंस 1971, जब यूएसए ने टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया था और इंडिया को धकेल दिया था इनटू द आर्म्स ऑफ रशिया। इंडिया यूएसए का नेचुरल एलाई है और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए ना। नीचे आप देख पाओगे इस टाइप की इमेजेस लोग बना रहे हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, 20 साल का हार्ड वर्क अंडर क्लिंटन, बुश, ओबामा, बाइडन, बट ट्रम्प्स ईगो विल डिस्ट्रॉय इट ऑल। और ट्रम्प यहाँ पर जो ब्रिज है ये हथौड़े Is से it इसको about destroy कर रहे ego हैं। or about Overwhelmingly something मैं देख else? रहा हूँ अमेरिकन जो लंबे समय से अमेरिका में रहे हैं, एक्चुअल अमेरिकन, मैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा, कोई अभी नया नया वहां पे पहुंचा है वगैरह, बट जेन्युइन अमेरिकन आप अगर देखोगे ना, सब लोग एक ही स्वर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखकर इंडियंस ये ना समझे कि सभी अमेरिकन इंडिया के बारे में नेगेटिव ओपिनियन लेकर बैठे हैं। और इधर आप देख पाओगे Okay. जॉन बोल्टन यूएसए के पूर्व नेशनल Yeah, I सिक्योरिटी think एडवाइजर, same. ये भी वही बात दोहराएंगे जो मैं अभी कह रहा। Actually, many Americans even have like a good opinion about Russia. I was surprised about it, but I've seen it on my vlog channel because Americans like text me something good, and I was like, "What? What is going on?" And I think we need to have continued conversations among So not non-governmental all Indians people and Americans, same. so that people can understand that what's happening at the very top level is not reflective of what the rest of the country thinks. And ये इन्होंने सेम बात बोली है कि इंडियंस को समझना होगा कि जो आज के समय अमेरिकन टॉप लेवल पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा देश ऐसा It is सोच रहा है। obvious, जो right? एक्चुअल अमेरिकन हैं जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, दे आर वेरी मच प्रो इंडिया। आप देखोगे यूट्यूब पे मैंने देखा है कई अमेरिकन हैं प्रो इंडिया वीडियो बना support रहे हैं, really? डोनाल्ड ट्रम्प से सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई आर यू बुलिंग इंडिया। सो अगेन ओवरऑल मैं अभी भी काफी हद तक एक बिलीवर हूँ इंडिया यूएस रिलेशंस में। डोनाल्ड ट्रम्प Okay. एक पर्सनल ईगो या कोई घमंड की वजह से, आई मीन इट्स सैड कि इस लेवल पे आके एक बिलियनियर 2 टाइम यूएस प्रेसिडेंट इतनी छोटी सी Yeah. बात को लेकर दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब कर सकता है। आई डोंट नो पर्दों के पीछे डोनाल्ड ट्रम्प ने कितना डैमेज किया होगा यूएसए का अपनी ईगो की वजह से, बट क्लियरली इधर आप देख पाओगे बोल्टन ये कह रहे हैं it's not much consolation, but Trump does this all the time, and that's one reason I don't think he's fit to be president. But it's happened, and I think the potential now is what Prime Minister Modi should look to do is wait for the right moment to take Trump aside very privately and say,
we've got to fix this. One suggestion would be if Modi is coming to the opening of the UN General Assembly in New York in the third week in September, that's a time when foreign leaders have a lot of meetings on the side. The side meetings are more important than the opening of the General Assembly, but it's not one country coming to another's capital. Have a one-on-one between Trump and Modi, and let people say what they think of what's happened in the past several months. That is and clear the air a little unexpected bit, to hear. and I think that would be helpful. ना इनका यहाँ पर ये भी मानना है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अभी ये जो मीटिंग होगी यूएसए में, तो पीएम मोदी जब जाएंगे यूएस में उस टाइम ये अलग से ट्रम्प से मिल सकते हैं, एक मीटिंग हो सकती है और पीएम मोदी डायरेक्टली ट्रम्प को कह सकते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस को रिकवर करवाने की आवश्यकता है। बट अगेन मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, अभी के लिए ना लगता नहीं है कि पिछली सारी बातें जो ट्रम्प बोल चुके हैं, भारत को फेल्ड इकोनॉमी बोल देना और बहुत सारी और नेगेटिव बातें बोलना भारत के बारे में, Failed लोग उसको economy. भुला देंगे। जो डैमेज है बहुत डीप हो चुका है। मुझे लग रहा है कि एक्चुअली यूएस इंडिया रिलेशंस अगली प्रेसिडेंसी कोई अगले प्रेसिडेंट बनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बट अभी के लिए ट्रम्प ने अगर एक काम किया है वो ये है कि इंडिया Next चाइना रिलेशंस रैपिडली इंप्रूव कर दिए हैं और आगे जाकर आप देखोगे जब जेन्युइनली कोई ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो यूएस फॉरेन पॉलिसी के बारे में चिंतित है, तो वो कहेगा क्या मुझे एक मैस थमा के चले गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प। मैंने रिसेंटली देखा चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि चाइना बिल्कुल यूएसए के अगेंस्ट खड़ा है। यूएसए के जो टैरिफ सैंक्शंस लगा दिए गए हैं भारत पे, चाइना बिल्कुल इसके अगेंस्ट खड़ा है। हालांकि इन्होंने फिर ये भी कह दिया कि इनके हिसाब से पाकिस्तान एक विक्टिम है टेररिज्म का, ये चाइना के साथ एक हमेशा इशू रहेगा। बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, चाइना ने प्रूव किया है कि ये ज्यादा स्टेबल पार्टनर है कंपेयर टू यूएस। पाकिस्तान के साथ जो भी आप कह लीजिए, चाइना ने स्टेबिलिटी दिखाई है। यूएसए के साथ ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया तो China is very negative comments करनी controversial. स्टार्ट कर दी। ये चीजें लॉन्ग टर्म में आप देखोगे यूएसए को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं इमैनुअल मैक्रोन की, आज की ट्वीट है। इन्होंने बोला मेरी अभी बात हुई है पीएम मोदी से और इन्होंने बोला कि हमने यूक्रेन के बारे में बात करी, यूरोप की सिक्योरिटी के बारे में और वेरियस और इश्यूज के बारे में बात करी। और लास्ट की कुछ लाइन है ना, ये नोट करना, इन्होंने कहा है कि 2026 में फ्रांस होस्ट करेगा G7 समिट, तो उसके लिए यहाँ पे बात हुई है कि किस तरीके से फ्रांस की प्रेसिडेंसी को भारत सपोर्ट करेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये देखना कि फ्रांस सपोर्ट करेगा भारत की प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2026। ब्रिक्स What? वही ग्रुप जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि इस ग्रुप को मैं तोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, ब्रिक्स बहुत खराब है, ब्रिक्स डॉलर के अगेंस्ट है। इमैनुअल मैक्रोन ने पहली बार ऑफिशियली मैं कहूंगा What is going ब्रिक्स का on? मेंशन किया है और पॉजिटिव तरीके से किया है कि बिल्कुल हम Really ब्रिक्स को सपोर्ट surprised करते about हैं। it. एक रीजन मेरे हिसाब से ये है, अभी कुछ ही घंटों पहले न्यूज आई थी कि ट्रम्प ने फिर से टाको कर लिया है यूक्रेन रशिया के बीच में जो सीज फायर करवाना था। जी हाँ, सीज फायर यहाँ पर बोलना पड़ेगा। यूक्रेन अभी भी सीज फायर चाहता है, जबकि ट्रम्प और पुतिन चाहते हैं कि परमानेंट पीस डील यहाँ पर हो जाए। ट्रम्प यहाँ से टाको कर चुके हैं। ट्रम्प ने बोल दिया है कि पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग करवाओ, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। तो जो ट्रायलैटरल मीटिंग की बात की जा रही थी, अब उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग कब होगी आप खुद ही यहाँ पर सोच सकते हैं, कब दोनों लीडर्स आपस में मिलेंगे, कब क्या होगा वगैरह। और बेसिकली यूएस मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रम्प ने इस झंझट से खुद को दूर कर लिया है। वो नहीं चाहते इसमें ज़्यादा वो पार्ट बने, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन की भी बॉडी लैंग्वेज से समझ चुके हैं। पुतिन कोई यहाँ पर जमीन छोड़ने नहीं वाले, उल्टा पुतिन जमीन गेन करने की बात कर रहे हैं। कोई यहाँ पर लैंड ऐसा नहीं है कि पुराना लैंड रशिया वापस यूक्रेन को पकड़ा देगा। तो यहाँ पर भी देखिए, एक आप कह लीजिए रिट्रीट कर रहे हैं ट्रम्प, और यूरोपियन लीडर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और आप देखोगे कई लीडर्स अब ब्रिक्स के बारे में पॉजिटिव तरीके से मेंशन करना शुरू कर देंगे आने वाले कुछ महीनों में। इमैनुअल मैक्रोन एक शुरुआत है, आने वाले समय में I don't understand this world. टू इंडिया। मुझे लग रहा है कि फ्रांस उस विजिट का भी सपोर्ट करेगा। ये अच्छी बात है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन भारत में गए हैं, It is very unexpected. अच्छा निष्कर्ष यहाँ से निकल के आएगा। एंड ओवरऑल आप अगर देखो तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी, Here, just this phrase is really nice. That in geopolitics, there are no permanent friends, only permanent interests, right? इस वक्त लग रहा है कि बिना किसी दिशा के जा रही है। इट इज हेडलेस। सब लोग यही बोल रहे हैं, जयशंकर साहब वाली लाइन कि वी आर परप्लेक्स, समझ नहीं आ रहा कि यूएस करना क्या चाहता है। तो आने वाले समय में देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। आई बिलीव इंडिया और रशिया के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील भी डिस्कस की जा रही है। दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग आंसर टू यूएस।
कि दो डेड इकोनॉमीज ने आपस में यूएस के Yeah. सैंक्शंस को इग्नोर करके एक बड़ी डील कर ली है. सो अ लॉट विल हैपन. कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा. So yeah, guys, this situation was really well discussed on my channel already, and what I want to say today is that I'm curious about Jay Shankar's interview because I think he gave some really nice interview about Russia. And guys, if you know about it, please give me links in the comments. I would be so much grateful, really. And also about all the situation with United States of America, Russia, China, and other things. I think that of course this was a mistake of Trump. It was his egoic decision, just to ruin the relationship between two countries, and India is really beneficial for America. And many Americans of course understand it, and I think they are not really satisfied with Trump's decision, but what to say, what to do. We can't already change it, and now I like that of course it pushes India more to Russia, to China, and this good trio. I just love the idea of Russia, China, and India together. But as for China, it is really difficult to understand their actions because they support Pakistan or they support someone else. It's always very messy with them, right? India has some problems with China, with territory, right? So it is quite complicated. And guys, tell me your opinion about it. I'm really so much happy that Jay Shankar visited Russia, and I'm looking forward to more videos about Jay Shankar, about India, about Russia, about Putin in India. So guys, subscribe to my channel, give me a thumbs up, and see you in my next videos. Bye bye.